morning doctors. Today we'll be discussing equilibrium constant in gaseous system. इससे पहले हमने equilibrium constant पढ़ा था कि in terms of concentration की terms में जैसे अगर कोई reaction है for example A moles of A plus B moles of B is in equilibrium with C moles of C plus D moles of D. So वहाँ पे equilibrium constant Kc की वैल्यू आ रही थी, प्रोडक्ट की concentration raised to their stoichiometric coefficient respective stoichiometric coefficient divided by reactant की concentration raised to their respective stoichiometric coefficient. Now अगर हमें गैसीय सिस्टम में देखना है यानी गैसेस प्रेजेंट है उस केस में तो कंसंट्रेशन होगी नहीं गैस की बिकॉज कंसंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर और गैसेस के लिए तो हम वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे वी नीड टू फाइंड आउट कि किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है. वी वेरी वेल नो कि आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इज इक्वल टू हाउ मच NRT और यहाँ पे हम देख सकते हैं P इज इक्वल टू हाउ मच N. V यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स जो प्रेशर होता है गैस का दिस इज प्रोपोर्शनल टू N अपॉन V. अगर ROT इज कॉन्स्टेंट दैट मीन्स प्रेशर ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस. इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे. इसका मतलब है हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं. उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल कर आएगा वी कॉल दैट एज KP. KP मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. सो अगर कोई ये वाली रिएक्शन नहीं थी सो वी विल राइट partial pressure of A raised to power A stoichiometric coefficient into firstly we'll write product partial pressure of C raised to power C into partial pressure of D raised to power D stoichiometric coefficient divided by reactants का partial pressure of A raised to power A into partial pressure of B raised to power B. This is what? This is Kc which is in terms of concentration and this is Kp which is in terms of partial pressure of gases. When more than two gases are present we call the pressure of one gas as partial pressure. ठीक है. So PC is partial pressure of C, PD is partial pressure of D, PA is partial pressure of A, whereas PB is partial pressure of B. We'll try to find out the relationship between this KP and KC. कोई रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं. A moles of A gaseous reaction B moles of B is in equilibrium with C moles of C plus D moles of D. अब यहाँ पर KC की वैल्यू आ जाएगी हाउ मच concentration of products raised to their stoichiometric coefficient divided by concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficients. Whereas Kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी partial pressure of C raised to power C into partial pressure of D raised to power D upon partial pressure of A raised to power A into partial pressure of B raised to power B. And we very well know by ideal gas equation PV is equal to how much NRT. So P will be equal to how much N upon V RT. N upon V is what? Molarity और concentration. So P की वैल्यू आ जाएगी CRT के बराबर. We'll use this here. So Kp की वैल्यू हो जाएगी PC की जगह हम लिखेंगे concentration of what? Concentration of C. So C की concentration और क्या है साथ में RT raised to power C and PD की जगह हम क्या लिखेंगे concentration of what? दिस इज कंसनट्रेशन ऑफ C. यहाँ पे किसकी कंसनट्रेशन है? D की कंसनट्रेशन ऑफ D RT रेज टू पावर T डिवाइडेड बाय PA की जगह A की कंसनट्रेशन यानी A की कंसनट्रेशन A इंटू क्या है RT रेज टू पावर A और यहाँ पे क्या लगेगा B RT रेज टू पावर B. इसको सेपरेट कर लेते हैं कंसनट्रेशन टर्म्स को यानी कि C की कंसनट्रेशन रेज टू पावर C, D की कंसनट्रेशन रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय A की कंसनट्रेशन रेज टू पावर A इंटू B की कंसनट्रेशन रेज टू पावर B और यहाँ पे बच गया RT होल रेज टू पावर दिस इज C और क्या बच गया RT रेज टू पावर D डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पे क्या बच गया RT रेज टू पावर A इंटू RT रेज टू पावर B. ये चीज़ बच गई. नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस वैल्यू इज KC. दैट मीन्स Kp की वैल्यू किसके बराबर आ गई? दिस वैल्यू इज इक्वल टू KC और यहाँ पे क्या है RT बेसिस आर सेम पावर विल गेट एडेड सो RT होल की पावर कितनी हो जाएगी ऊपर हो जाएगी C प्लस D एंड डिवाइड में भी ऐसे ही है. डिवाइड में भी पावर्स आर सेम बेसिस आर सेम सो पावर्स विल गेट एडेड. कितना हो जाएगा A प्लस B. ना यहाँ पे बेसिस है में पावर ये डिवाइड में तो ये माइनस हो जाएंगे. Kp इज इक्वल टू KC RT रेज टू पावर C प्लस D माइनस A प्लस B. ये क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. C प्लस D वॉज वॉट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
एंड A plus B was what? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. ये रिएक्टेंट के मोल्स हैं और ये प्रोडक्ट के. सो हम इसकी जगह डेल्टा Ng भी लिख सकते हैं. जितने गैसियस मोल्स में चेंज आ रहे हैं Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा Ng. रिमेंबर दिस विल बी ओनली फॉर गैसेस. गैसेस के जितने मोल्स चेंज हो रहे हैं हम वो कंसिडर करेंगे. जो प्योर सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनकी जो कंसनट्रेशन है वो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं. हम आगे बढ़ेंगे होमोजेनस हेटेरोजेनस में. सो वेयर डेल्टा Ng इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट. दिस विल बी द रिलेशन फॉर between Kp and Kc. Equilibrium constant in terms of pressure, equilibrium constant in terms of concentration. और ये दोनों बराबर कब होंगे? जब डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 आएगा. यानी जितने मोल्स रिएक्टेंट में उतने ही मोल्स प्रोडक्ट्स में भी रहेंगे. अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा बिटवीन Kp एंड Kc. नाउ टू टाइप्स के इक्विलिब्रा होते हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रा एंड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रा. होमोजेनस इक्विलिब्रा में क्या होता है? जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब एक ही फेज में होते हैं. यानी कि सबके सब या तो गैसियस फेज में होंगे या सबके सब लिक्विड फेज में होंगे या फिर सबके सब किस में होंगे? एक्वस फेज में. ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज. सो यहाँ पे तो हमें पता है Kp और Kc कैसे करके लेना है. हमने किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को नहीं छोड़ना है. लेकिन हेटेरोजेनस में क्या होता है? दे आर नॉट प्रेजेंट इन सेम फेज एंड मोर देन वन फेज इज प्रेजेंट. एक से ज़्यादा फेजेस होंगे रिएक्शन में. मोर देन वन फेज इज देयर. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रिएक्शन कंसिडर करें और जब मोर देन वन फेज होगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्योर सॉलिड एंड लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं. फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट. तो हम प्योर सॉलिड या लिक्विड की कंसंट्रेशन को कंसिडर नहीं करेंगे इन केस ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रा. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. ये सॉलिड होता है लाइमस्टोन. ये डिकम्पोज करा, ये इक्विलिब्रियम में है विद कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए गैस. बट CO इज व्हाट? दिस इज ऑल्सो सॉलिड. सो यहाँ पे ये हेटेरोजेनस इक्विलिब्रा है. हम सिर्फ CO2 को कंसिडर करेंगे, गैस वाले को. सो इस केस में Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओनली वील कंसिडर CO2. Kp की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. सो गैस के लिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू पावर 1 बिकॉज यहाँ पे इसकी मोल्स कितने हैं? 1. सिमिलरली अगर हम इस ऐसी और भी कोई रिएक्शंस देखें वहाँ पे हम सिर्फ गैस को कंसिडर करेंगे और गैस के लिए हम लिखेंगे Kp. Kp इज हाउ मच? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू पावर 1. और Kp से हम Kc भी निकाल सकते हैं या अगर Kc दिया है तो Kp भी फाइंड आउट कर सकते हैं. हम Kp और Kc क्यों पढ़ते हैं? वाई देयर इज नीड टू स्टडी देम? सो इनके एप्लीकेशंस हैं कुछ. फर्स्ट एप्लीकेशन इज दे प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. कि रिएक्शन कितना % प्रोसीड कर रही है उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है. मतलब ज़्यादातर उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी. सेकंड होती है जिसमें रिएक्शन थोड़ी सी स्टार्ट हुई होती है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है. वहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की बहुत कम होगी. एंड थर्ड आती है इंटरमीडिएट काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंपेरेबल है. ये चीज़ हमें किससे पता चलती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्शन बहुत आगे तक प्रोसीड कर रही है. उस केस में प्रोडक्ट डोमिनेट करेंगे. Kc की वैल्यू कम है तो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन बहुत कम प्रोसीड करेगी. और Kc की वैल्यू अगर कंपेरेबल है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अप्रिशिएबल कंसंट्रेशन है. वी हैव स्टडीड कि अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ या 1000 से ज़्यादा होगी यानी Kc की वैल्यू इज़ वेरी लार्ज तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक प्रोसीड करेगी. यानी कि 99% रिएक्शन कंप्लीट हुई थी और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. उस केस में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट. जब Kc की वैल्यू 1/1000 या 10⁻³ से कम होगी यानी रिएक्शन ने थोड़ा सा ही प्रोसीड किया था 1% 2% और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. उस केस में रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट्स कम बने होंगे. नेक्स्ट है जब Kc की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कंपेरेबल है. तो इस तरीके से हम रिएक्शन का एक्सटेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं Kc की वैल्यू से. नाउ सेकेंड एप्लीकेशन इज प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे रिएक्शन हो रही है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B इज गिविंग अस C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D.
सो हमें नहीं पता है अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है नहीं, ये सिंपली एक रिएक्शन है। तो हमें बताना है इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी, डायरेक्शन बताना है रिएक्शन का। हमें बस ये रिएक्शन गिवन है, तो हम इसके लिए निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो निकाल नहीं सकते बिकॉज इक्विलिब्रियम पे है नहीं रिएक्शन। तो इस केस में हम निकालते हैं रिएक्शन कोशेंट, और रिएक्शन कोशेंट को डिनोट करते हैं QC से। सेम वैल्यू होगी इसके लिए भी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर C अपॉन उसका स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, डी की कंसंट्रेशन रेज टू पावर उसका स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट अपॉन प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू देयर रिस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। दिस इज रिएक्शन कोशेंट। अब अगर देखो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू Kc के बराबर निकल आती है, अगर बराबर आ गई दैट मीन्स रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, यानी हमने जो रिएक्शन कोशेंट निकाला वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ गया, रिएक्शन इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर QC की वैल्यू ज़्यादा आती है Kc से, तो QC अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम लाने के लिए कम करने की कोशिश करेगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। सो इन दैट केस बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड when QC is greater. Third case is when QC is lesser than Kc. So QC अपने आप को Kc के बराबर करने के लिए इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। सो इन दिस केस फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। हमें क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया होगा, हमने और कोई रिएक्शन दी होगी और उसमें पूछा होगा बताओ बैकवर्ड प्रोसीड करेगी रिएक्शन या फॉरवर्ड, तो हम उसके लिए QC की वैल्यू निकालेंगे और ये 3 कंडीशंस में देखेंगे कि क्या आ रही है। अगर दोनों बराबर हो तो इक्विलिब्रियम, अगर QC ग्रेटर हो तो अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। जब QC छोटा हुआ तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन वाज प्रेडिक्टिंग द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। जैसे अगर हमें कोई रिएक्शन दे दी है A moles of A प्लस B moles of B is giving us C moles of C प्लस D moles of D। हमें इनकी कंसंट्रेशन नहीं बताई है, हमें जस्ट Kc की वैल्यू दे दी है, Kc की वैल्यू दे दी है। जैसे Kc दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और हमसे कोई एक पूछ लिया यहाँ पे, जैसे अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, पहले रिएक्शन स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कितनी C इज कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन भी मान लेते हैं C, और प्रोडक्ट्स तो बने नहीं होंगे तो इनकी 0 और इसकी भी 0। नाउ देयर इज अ थिंग विच इज नोन एज अल्फा। अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी ये जो रिएक्टेंट है कितना डिसोसिएट करेंगे, कितना टूट सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। दिस वैल्यू इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमें पॉइंट्स में आती है, अगर पॉइंट में नहीं तो कभी कभी परसेंट में दी होगी। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं 80% डिकम्पोज हो रहा है, तो परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। सो उस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8। इस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा वाला जो रिएक्टेंट है वो कितना मोल टूटेगा। सो जैसे इस वाले केस में देख लेते हैं, ये C कंसंट्रेशन दी है, इसकी कंसंट्रेशन C दी है और ये दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे इनकी जितनी कंसंट्रेशन है C, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट अभी नहीं लें, विदाउट स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट करें, सो इसकी कंसंट्रेशन C है। C अगर इसकी कंसंट्रेशन है, इसमें से अल्फा मोल्स ये डिसोसिएट करता है, तो C में से कितना निकलेगा, C अल्फा। 1 मोल में से कितना निकल रहा था, अल्फा। 1 मोल अल्फा टाइम्स टूट रहा है, तो C मोल कितने टाइम्स टूटेगा, C अल्फा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, C माइनस C अल्फा। और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी कितने से, C अल्फा से, और इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी कितने से, C अल्फा से। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। नाउ इफ वी वर टू कैलकुलेट Kc की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन इनकी, है ना, ऐसे लिखते हैं। ये C के आ गया कंसंट्रेशन, ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई, तो Kc की वैल्यू तो निकालना ही है। C की कंसंट्रेशन लिखेंगे C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस अल्फा। नाउ इफ वी वर टू कैलकुलेट Kp कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर CdAp। नाउ पार्शियल प्रेशर को कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखना हो, दिस इज व्हाट, दिस इज कंसंट्रेशन। पार्शियल प्रेशर कितना होता है कंसंट्रेशन की टर्म्स में, N/V। ऐसे लिखते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर। एप्लीकेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज Kc और Kp का,
थर्ड एप्लीकेशन ये है कि इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट अस द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे कि इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द कंसंट्रेशन of reactants or products at equilibrium. Reactants/products at equilibrium. क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बता सकते हैं. किसी की गिवन होगी और किसी दूसरे की हमसे पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ले लें N2O4, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये है इन इक्विलिब्रियम विद 2 moles ऑफ NO2, दैट इज ऑल्सो इन गैसियस सिस्टम. नाउ हियर इसका अगर हमें प्रेशर गिवन है 4.98 फॉर एग्जांपल, इतना प्रेशर इसका गिवन है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन. आफ्टर ए वाइल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया और उस टाइम पे हमसे पूछ लिया कि NO2 का प्रेशर कितना है. गिवन दैट टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर हमें अगर दे दिया हो 9.15 बार. नाउ व्हाट विल हैपन कि ये 4.98 बार था प्रेशर इसका. इसने जब रिएक्ट किया तो रिएक्ट करके ये 2NO2 बनाएगा. स्टार्टिंग में तो इसका प्रेशर 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे ये रिएक्ट करने लगेगा इसका प्रेशर कम होने लगेगा और इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा. और जितना इसका प्रेशर कम होगा, जितने मोल्स, इसका 1 मोल इसके 2 मोल्स दे रहा है, तो अगर इसके x मोल्स ने रिएक्ट किया या इसके x बार प्रेशर ने रिएक्ट किया है, तो 1 मोल तो 2 मोल दे रहा है. अब इसके x बार प्रेशर ने रिएक्ट किया है तो इसका x बार प्रेशर रिएक्ट करके 2x बार देगा NO2 का. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे इसका x मोल निकलेगा. वाई? बिकॉज ये 1 ही मोल रिएक्ट कर रहा है, दैट इज वाई. 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, दैट इज वाई हमने 1x लिया. जब 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल्स बन रहे हैं. तो अगर 1x रिएक्ट कर रहा है, 1x कम हो रहा है प्रेशर, तो यहाँ पे 2x बनेंगे, डबल उसका. एंड टोटल प्रेशर इज गिवन एज 9.15 बार. और हमें यहाँ पे अगर हमने Kp या Kc की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें पता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2. दोनों के प्रेशर जो होंगे उसी के बराबर आएगा टोटल प्रेशर, विच इज़ 9.15 बार. पार्शियल प्रेशर N2O4 का कितना निकला है? 4.98 माइनस x. और पार्शियल प्रेशर NO2 का कितना निकला है? 2x. 2x माइनस x इज हाउ मच? 1x. ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस, तो 9.15 माइनस 4.98. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हाउ मच? दिस वैल्यू विल बी 4.17 बार. तो 4.17 बार आ गया. इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हुआ था, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे, यहाँ पे इसने कितना, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे इसका प्रेशर कितना है? 4.98 माइनस x हमने कितना निकाला? 4.17. दिस वैल्यू इज समवट अराउंड 0.81 बार. और यहाँ पे 2x बना इसका. 2x यानी 2 इंटू हाउ मच? 4.17. तो इसका प्रेशर आ रहा है समवट 8.34 बार. तो अब हमें दोनों का प्रेशर पता चल गया इक्विलिब्रियम पे. जब दोनों का प्रेशर पता चल गया तो वी कैन इजीली कैलकुलेट Kp, क्योंकि Kp में क्या यूज़ होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स NO2 रेज टू देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4. सबके सब गैसेज होने चाहिए, होमोजेनस इक्विलिब्रा. अगर हेटेरोजेनस होगा तो हम सॉलिड और लिक्विड वाले के मोल्स या प्रेशर को कंसिडर नहीं करेंगे. तो NO2 का कितना प्रेशर आया था? NO2 का प्रेशर हेयर वाज NO2 का प्रेशर 8.34. सो 8.34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 का कितना प्रेशर आया था? N2O4 का प्रेशर इज 0.81. इसको अगर हम सॉल्व करें सो आंसर विल कम आउट लाइक 85.87. तो ये आ जाएगी वैल्यू Kp की. अब Kp की वैल्यू आ गई तो हमें Kp और Kc के बीच में रिलेशन पता है. यहाँ पे कंसंट्रेशन दी नहीं थी तो Kc कैसे निकालें? पहले Kp निकाल लेंगे, फिर Kp की वैल्यू से वी कैन इजीली कैलकुलेट Kc, बिकॉज वी वेरी वेल नो कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर हाउ मच? डेल्टा n. वेर डेल्टा n क्या हो जाएगा? डेल्टा n हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने? 2 और रिएक्टेंट के कितने? 1. दैट मीन्स डेल्टा n की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1, दैट इज 1. सो अगर हम यहाँ पे Kc निकालने की कोशिश करें सो Kc की वैल्यू आ जाएगी कितनी? Kp कितना है? 85.87 डिवाइडेड बाय R. हमने लेना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
यहाँ किस में लिया है, बार में। तो लीटर बार या लीटर एटमॉस्फेयर जब होता है तब हम क्या लेते हैं वैल्यू, 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर यहाँ पे गिवन अगर होगा, जैसे रिएक्शन में यहाँ पे टेम्परेचर जो भी दिया होगा वो हम यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है तो इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज वी नीड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 5 + 3 8 7 + 2 दिस इज हाउ मच। और जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इस क्वेश्चन में गिवन था, अगर ये क्वेश्चन अगर हम देखें, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन था 400 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमें लेना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हाउ मच, 400 केल्विन टेम्परेचर। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो आंसर विल कम आउट टू बी अराउंड 2.586। आंसर आ जाएगा 2.586। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Kc। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। पहले मतलब ये तरीका होता है कंसंट्रेशन प्रेडिक्ट करने का एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हम पहले लिख लेते हैं स्टार्टिंग के मोल कितने, इसका 0 होगा, और इसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं कि एक्स मोल रिएक्ट कर रहे हैं। 1 मोल 2 मोल्स दे रहा है तो एक्स मोल्स कितने देंगे, 2x मोल और प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर था सो 1x प्रेशर रिएक्ट करेगा तो 2x प्रेशर ऑफ NO2 यहाँ पे बनेगा। इसका इंक्रीज होगा और इसका डिक्रीज होगा विद टाइम, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो देयर विल बी नो फर्दर चेंज। इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर 0.81 है, इसका 8.34 है, तो उस वैल्यू से हम Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं। Kp की वैल्यू निकालनी, फिर वहाँ से हम Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक और एग्जाम्पल देखें, लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा था वहाँ पे भी कंसिडर्ड प्रेशर। यहाँ पे हमने देखा कि कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम हाउ, अगर हमें प्रेशर गिवन है, थोड़ी देर के बाद इसका x मोल रिएक्ट करेगा और इसका 2x मोल देगा, तो Kp की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इफ अगर हमें पार्शियल प्रेशर नहीं देकर कंसंट्रेशन दी हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिएक्शन है, टेम्परेचर गिवन है और Kc की वैल्यू भी गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन है कि स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे इसके 3 मोल्स प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, तो ये 0। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तब 3 के कुछ मोल्स निकलेंगे, वी लेट की x मोल्स निकले। इसका 1 मोल PCl3 बना रहा है, यानी इसके x मोल जो निकले वो x मोल बनाएंगे PCl3 का, और जो इसका 1 मोल Cl2 दे रहा है, तो x मोल अगर इसके रिएक्ट करें तो यानी Cl2 के भी x मोल्स बनेंगे। सो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया दैट मीन्स बाकी का क्वेश्चन निकल आएगा इजीली। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो Kc की वैल्यू कितनी होती है, Kc की वैल्यू होती है, हम इसको मोल पर यूनिट वॉल्यूम करके कर सकते हैं, बट वॉल्यूम सब में सेम है तो अपॉन वॉल्यूम जो है दैट विल गेट कैंसल्ड। वॉल्यूम तो सेम, अगर 1 लीटर ही हम लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वॉल्यूम हम 1 लीटर ले लेते हैं। सो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम विच इज़ 1 लीटर। 95% केसेस में ऐसे ही आएगा वॉल्यूम 1 लीटर। तो Kc की वैल्यू हम ले लेंगे कंसनट्रेशन ऑफ PCl3 रेस टू इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दिया यहाँ पे तो 1 होगा। नेक्स्ट Cl2 की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट विच इज़ PCl5 की कंसनट्रेशन। नाउ इफ यू सी PCl3 की कंसनट्रेशन कितनी है, x अपॉन वॉल्यूम इज़ 1 लीटर, मल्टीप्लाइड बाय Cl2 की कितनी है, मोल्स, x अपॉन वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय PCl5 की कितनी है, 3 - x, और Kc की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस विच इज़ 1.8। तो वी कैन सी कि यहाँ से कितना आ रहा है, ये x का स्क्वायर, ये यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 - x। सो दिस विल बी x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 3 इज हाउ मच, 5.4 माइनस 1.8x। ना यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 1.8x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, -5.4 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करके सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है, यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है देख लो, जैसे a की वैल्यू दी है यहाँ पे 1 x स्क्वायर के साथ वाली टर्म, b की वैल्यू यहाँ पे दी है कितनी, x के साथ वाली टर्म 1.8, और c की वैल्यू कितनी दी है -5.4। उन सबको अगर हम यहाँ पे पुट कर लेंगे यानी कि -b -1.8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 1.8 का होल स्क्वायर -4, a कितना दिया है, a इज़ 1 एंड c कितना दिया है -5.4 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ a कितना दिया है 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे पूरा लास्ट में रूट ले तो आंसर कम्स आउट टू बी 1.59 मोलारिटी। तो अब हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता सकते हैं इन तीनों की। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 - 1.59, यहाँ पे आ जाएगी 3 - 1.59, समवट 1.5 के या 1.41 के बराबर आएगी। यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी 1.59 इतने मोल्स, और इसकी कितनी आ जाएगी 1.59। अगर वॉल्यूम 1 लीटर दिया है तो 1.59 मोलर, यहाँ पे भी 1.59 मोलर, और ये कितना आ जाएगा 1.41 मोलर। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ Kc, या फिर हम Kp भी निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम पर। तो ये थर्ड इसका एप्लीकेशन था ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
हमने यहाँ पे एक्स पढ़ा था ना, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कोई मॉलिक्यूल कितना डिसोसिएट कर रहा है। इसको कभी कभी मतलब अल्फ़ा के साथ भी इसको रिलेट करके दिखाते हैं। जैसे अगर हम जनरल केस देखें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर कंसिडरिंग ए जनरल केस ए मोल्स ऑफ ए, जैसे कि ए है, ये कोई रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में बी के साथ, तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन है सी और इसकी कंसंट्रेशन है 0, और हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि जो ए है ना, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया है कि ये कितना डिसोसिएट करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि ये कितना टूटेगा रिएक्शन में, ये हमें दे दिया है अल्फ़ा। पॉइंट्स में आती है इसकी वैल्यू, ऑलवेज लेसर देन 1। अगर 1 आई यानी कंप्लीटली टूट रहा है तो आयनिक रिएक्शन होगी। अगर अल्फा 0 आई यानी टूट ही नहीं रहा है, सिर्फ रिएक्टेंट ही आएगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो ये जितना टूटेगा सी कंसनट्रेशन 1 मोल के लिए, ये अल्फा टूटेगा तो सी मोल के लिए कितना टूटेगा, सी माइनस सी अल्फा, और वही सी अल्फा जो है आगे चल के क्या बनाएगा, बी। 1 मोल ए 1 मोल बी दे रहा है, तो सी अल्फा जो है कितना देगा, बी सी अल्फा। इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। वील डिस्कस दिस इन आयनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन के, क्यू एंड जी। के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट, और जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। अगर हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे यूज़ होती है, और जैसे कोई रिएक्शन दी है और उस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज जो होता है ये बराबर होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ स्टैंडर्ड रिएक्शन प्लस आर विच इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नेचुरल लॉग क्यू। क्यू इज़ व्हाट, क्यू इज़ रिएक्शन कोशेंट। तो ये होता है जनरल केस वेर दिस इज़ व्हाट, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी, सिंपली गिब्स फ्री एनर्जी। और ये क्या है, यहाँ पे नॉट लग गया, दैट मीन्स दिस इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। आर की वैल्यू भी वेरी वेल नो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फिर भी अगर नहीं पता है किसी को, सो इसकी वैल्यू होती है 8.314 अगर जूल पर केल्विन पर मोल में दिया हो क्वेश्चन के बाकी के यूनिट्स तो, या इसकी वैल्यू होती है 0.0821 अगर लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में लिखना हो, या लीटर बार पर केल्विन पर मोल में लिखना हो, और इसकी वैल्यू 2 होती है जब हमें कैलोरी पर केल्विन पर मोल में लिखना हो। तो ये 3 वैल्यूज़ होती हैं आर की। नेक्स्ट टी इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड क्यू इज़ व्हाट, क्यू इज़ रिएक्शन कोशेंट। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो जो वैल्यू निकल कर आती है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। इसको क्यूसी से भी डिनोट किया होता है। और हमने केसी की वैल्यू निकाली थी, सिमिलरली क्यूसी की वैल्यू भी वैसे ही निकालते हैं। जैसे ए मोल्स ऑफ ए है प्लस बी मोल्स ऑफ बी है, दिस इज गिविंग अस सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। तो यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर रिस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। नाउ जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी, एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, ये जो क्यूसी की वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, और जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा वो चेंज होगा नहीं, बिकॉज डेल्टा जी की जो वैल्यू है गिब्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम में फ्री एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, यहाँ पे यूजफुल वर्क हो नहीं रहा है बिकॉज रिवर्सिबल वर्क है। तो डेल्टा जी आर की वैल्यू इक्विलिब्रियम के केस में इज 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, और क्यू किसके बराबर हो गया, के सी के। दिस वैल्यू इज प्लस हेयर, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी माइनस, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग बेस 10 में ही ज़्यादातर हम लेते हैं, सो दिस विल बी माइनस 2.303 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर लॉग ऑफ के सी इज़ व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये रिलेशन होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। दिस विल बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। नाउ व्हाट इफ की ये जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटी लॉग अगर दोनों तरफ ले लें, इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लें, पहले के सी को यहीं पे रखते हैं, बाकी सबको वहाँ पे भेज देते हैं, तो यहाँ से के सी की वैल्यू आ जाएगी बराबर हाउ मच, माइनस साइन को भी वहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, और यहाँ पे क्या था, लॉग भी था ना, दिस वॉज आर टी एल एन के सी, सो यहाँ पे एल एन के सी था, दिस वॉज एल एन के सी। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो एंटी लॉग एंड लॉग विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे बच जाएगा के सी, और इसका आ जाएगा एंटी लॉग माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, दिस विल बी द न्यू इक्वेशन फॉर्म्ड। नाउ व्हाट विल हैपन इफ डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज हम देखेंगे इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे, जब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है लेसर देन 1 है, यानी डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव,
सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. दैट मीन्स माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव. सो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ई की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है तो के सी की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव. यानी के सी की वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन 1. तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस. एंड रिएक्शन जो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी. प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, रिएक्टेंट कम बनेंगे व्हेन डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 1. नाउ व्हाट विल हैपन इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 1. अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई तो प्लस में आएगी, प्लस माइनस इज माइनस, यानी ये पूरी वैल्यू आ जाएगी माइनस में, यानी माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी. दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव. जब नेगेटिव आएगी तो ई रेज टू पावर समथिंग नेगेटिव विल बी लेसर देन 1. दैट मीन्स के सी की वैल्यू विल बी लेसर देन 1. तो ये रिएक्शन बहुत कम प्रोसीड करेगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. रिएक्शन बस स्टार्ट ही हुई थी और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया उस केस में. तो इस केस में रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट्स बहुत कम होंगे और रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. द रिएक्शन 2 moles of A plus B. So 2 moles of A plus B is giving us 3 moles of C plus D. So जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, इस बिगन विद कंसिडरेशन A and B both have an initial value of 1 molar. सो रिएक्शन के स्टार्ट में 1 मोलर दिया, ये भी 1 मोलर दिया है. अभी रिएक्शन जब स्टार्ट हुई तो प्रोडक्ट बने नहीं है, दिस विल बी 0, दिस विल ऑल्सो बी 0. स्टार्ट हुई रिएक्शन और उसके बाद दिया व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द कंसंट्रेशन ऑफ डी इज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 0.25 मोलर. नाउ व्हाट विल हैपन, ये 1 मोल है तो 1 मोल जो है 2 मोल्स चाहिए रिएक्ट करने के लिए 1 मोल को, तो 2 मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे. अगर हम लेट कर लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, यानी 1 मोल x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उतना डिसोसिएट करता है, उतना टूट रहा है, तो 2 मोल्स कितना डिसोसिएट करेगा, 2x. सिमिलरली अगर हम कंसिडर करें 1b जो है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, x मोल टूट रहा है 1 मोल, तो 1 मोल कितना टूटेगा, 1 माइनस एक्स. इतना टूट जाएगा, इतना रिएक्ट कर जाएगा, जो बचेगा दैट विल बी 1 माइनस एक्स एट इक्विलिब्रियम. और यहाँ पे 2x ने रिएक्ट कर लिया, जो बच जाएगा दैट विल बी 1 माइनस 2x एट इक्विलिब्रियम. नाउ 1 मोल से जो है 1 मोल बी से 3 मोल्स ऑफ सी बन रहे, इसके x मोल ने रिएक्ट किया है, तो इसके x मोल कितने बनाएगा, 3 मोल्स ऑफ x. और यहाँ पे b का x मोल 1 मोल d दे रहा है, तो x मोल ऑफ b विल गिव अस x मोल्स ऑफ d. हम एक एक कंपैरिजन में भी कर सकते हैं कि 2 मोल्स 3 मोल दे रहा है तो 2x कितने मोल्स देगा, 3x. 2 मोल 1 मोल दे रहा है तो 2x कितने मोल देगा, सिर्फ x मोल. ऐसे करके कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. नाउ द वैल्यू ऑफ Kc बतानी है और यहाँ पे दिया है D की कंसंट्रेशन दी है 0.25. दैट मीन्स इन्होंने x की वैल्यू ही दे दी है, हाउ मच, 0.25 मोलर. नाउ दिस इज 3 इंटू 0.25, 325 साइज 75, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 0.75 मोलर. दिस इज 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इज हाउ मच, 0.25. सो 1 माइनस 0.25 इज हाउ मच, 0.75. और यहाँ पे है ये 1 माइनस 2 इंटू 0.25. 0.25 इज 225 is 50, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 0.50. 1 माइनस 0.50 is 0.50. नाउ इफ वील फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc तो आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर इंडिविजुअल स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन रेज टू पावर स्क्वायर, B की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1. नाउ C की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.75, इसका हो जाएगा होल क्यूब. D की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.25 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.50 रेज टू पावर स्क्वायर, और B की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.75 रेज टू पावर 1. सो ये आ जाएगा आंसर. ऐसे में ही दिया है, सॉल्व करके नहीं दिया है. सो विच इज़ इन ऑप्शन बी. Association equilibrium of a gas AB2 can be represented as AB2 जो है इसके 2 मोल्स हैं, is in equilibrium with 2 moles of AB plus B2. ये गैस के स्मॉल मोल्स हैं. नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दी है, कितने मोल्स टूट रहा है, ये बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू 1. एक्सप्रेशन रिलेटिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp हमने एंड टोटल प्रेशर P दिया है. सो यहाँ पे हमें पार्शियल प्रेशर गिवन नहीं है, सो हम कितना लेट कर लेते हैं, पहले स्टार्ट जब हुई रिएक्शन तो इसके 2 था पार्शियल प्रेशर, 2 बार, इसका 0 एंड इसका 0. नाउ व्हाट विल हैपन एट इक्विलिब्रियम, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया x, तो इसमें से थोड़ा बहुत मोल डिसोसिएट करेगा. 1 मोल x टाइम करे तो 2 मोल कितने टाइम डिसोसिएट करेगा, 2x टाइम. और जितना इतना इसने डिसोसिएट किया है, 2 मोल्स AB2 2 मोल्स AB बना रहे हैं, तो 2x जितना डिसोसिएट हुआ है वो 2x बनाएगा AB. और 2 मोल्स ऑफ AB2 1 मोल B2 दे रहा है, यानी उसका हाफ, तो 2x मोल कितना देगा, x मोल. x मोल और x बार प्रेशर इक्विलिब्रियम पे. नाउ अगर हमने टोटल निकालना हो इन सब का टोटल प्रेशर, सबको प्लस कर देते हैं,
2 minus 2x इक्विलिब्रियम पे प्लस 2x प्लस x, माइनस प्लस विल गेट कैंसिल, टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा 2x. सो ये आ गया टोटल प्रेशर. ये हमने मोल्स निकाले ना, दिस इज मोल्स. नाउ पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? अगर हमने AB2 का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन AB2 का मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर एज पर रॉल्ट्स लॉ. ये हमने पढ़ा था रॉल्ट्स लॉ. तो पार्शियल प्रेशर AB2 का कितना आ जाएगा? AB2 के लिए विल बी, AB2 के कितने मोल्स है? 2 minus 2x, this is not 2x, this is 2 plus x, sorry. So 2 minus 2x divided by total moles कितने हैं? 2 plus x into total pressure P. पार्शियल प्रेशर ऑफ AB निकालना है तो AB के मोल्स कितने हैं? 2x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने? 2 plus x into total pressure which is P. नाउ टोटल प्रेशर नहीं है ये, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, सॉरी दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ये हमें मोल्स दिए थे ना, मोल्स 2 0 0. तो टोटल प्रेशर हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? टोटल प्रेशर इज P. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ B2. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 कितना हो जाएगा? B2 के मोल्स x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 plus x इंटू टोटल प्रेशर विच इज P. तो ये हमें मोल्स दिए थे 2 0 0. फिर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया था. अगर एक मोल x टाइम टूट रहा है तो 2 मोल्स कितने टाइम टूटेगा? 2x टाइम. और अगर एक मोल AB का बना रहा है तो 2 मोल x कितने बनाएगा? 2 मोल x 2x. और अगर 1 मोल B2 का दे रहा है तो 2x मोल कितने देगा? 1 मोल ऑफ x. अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं Kp की वैल्यू. Kp कितना होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 रेज टू पावर 1 स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 रेज टू पावर 2. नाउ PAB कितना दिया है? 2x. अब हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? कि x इज स्मॉल एज कम्पेयर टू 1. x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1. सो 2 plus x की वैल्यू समवट किसके बराबर आ जाएगी? 2 के. और यहाँ पे 2 minus 2x की वैल्यू को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी समवट बराबर आ जाएगी किसके? 2 के. बिकॉज x की वैल्यू बहुत छोटी है तो इनको हम निगलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट 2 लिखेंगे. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB में हम क्या लिखेंगे? ओनली 2x इंटू P. इसका हो जाएगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 x इंटू P. वील नॉट कंसिडर 2 plus x, वील ओनली राइट अपॉन 2. x नहीं लिखेंगे उसके साथ, अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2. ये इसको 2 ले लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय इसको भी 2 ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय P. और इसका क्या है? स्क्वायर. 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड. और क्या बच गया यहाँ पे? 2x का स्क्वायर. KB की वैल्यू कितनी आ गई? 2 2 ज़ा 4 x का स्क्वायर इंटू P इंटू क्या दिया है? x इंटू P डिवाइडेड बाय, यहाँ पे P का भी स्क्वायर हो जाएगा, P के साथ भी स्क्वायर है ना बिकॉज. तो यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू यहाँ पे क्या था? डिवाइड में 2. और यहाँ पे क्या था नीचे? P का स्क्वायर. P स्क्वायर एंड P स्क्वायर विल गेट कैंसल. 4 and 4 विल गेट कैंसल्ड. और कुछ बच गया. तो Kp की वैल्यू आ गई कितनी? x का क्यूब P डिवाइडेड बाय हाउ मच? 2. अब हमें Kp और P के बीच में रिलेशन बताना था. तो x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Kp. P यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई. यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. 2 यहाँ पे क्या है? डिवाइड. वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. दोनों का क्या लिख लेंगे? क्यूब रूट. तब जाके x की वैल्यू आएगी. तो क्यूब रूट एंड क्यूब विल गेट कैंसल. x की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ Kp 2 Kp अपॉन P. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 Kp अपॉन P रेज टू पावर 1/3. ऐसे भी लिख सकते हैं. तो देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन दिया है, कैसे टाइप में. 1/3 वाले फॉर्म में दिया है. तो 2 Kp अपॉन P रेज टू पावर 1/3 विच इज़ एन ऑप्शन डी. The values of Kp1 and Kp2 for the reaction. दो reactions दिए हैं, x gives y plus z. सेकेंड दिया है A is giving us 2 moles of B. इन दो के लिए values of Kp1 and Kp2. यहाँ पे equilibrium constant is Kp1 in terms of pressure and here it is Kp2. और इन दोनों का रेशियो दिया है Kp1 अपॉन Kp2. इसकी वैल्यू दी है 9:1. अगर इसको डिवाइड में लिखना है तो 9/1 लिख सकते हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x और B, x और A दोनों के लिए इक्वल दिया है. टोटल प्रेशर हमें बताना है किस रेशियो में आएगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे हम लेट कर लेते हैं, दोनों रिएक्शन को साथ में लिख लेते हैं. दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर दिया है. यहाँ पे अगर हम ले लें 1, अल्फा स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन 1 है, इसका 0, इसका 0. यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 1, इसका 0. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया अल्फा, यानी ये अल्फा मोल्स टूट रहा है. तो 1 में से कितने मोल्स टूटेगा? अल्फा मोल्स. और 1 मोल x 1 मोल y दे रहा है, यानी अल्फा मोल जो टूटा है वो अल्फा मोल y देगा और अल्फा मोल z देगा. हेयर 1 में से कितना टूटेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, हम ले लेते हैं अल्फ़ा. 1 मोल 2 मोल्स ऑफ बी दे रहा है तो अल्फ़ा मोल ने ब्रेक किया, वही बी देगा. तो अल्फ़ा मोल कितने देगा? 2 मोल्स ऑफ अल्फ़ा.
1 मोल 2 मोल दे रहा है तो अल्फ़ा कितने देगा 2 मोल, 2 अल्फ़ा, उसका डबल। नाउ अब हमने निकालना है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर हम ले लेते हैं टोटल प्रेशर बी, लेट टोटल प्रेशर बी पी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसके लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालें, टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, आंसर विल बी 1 प्लस अल्फ़ा। एंड हेयर ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालें तो आ जाएंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, प्लस माइनस 2 में से 1 निकाले 1, सो 1 प्लस अल्फ़ा विल बी द आंसर। नाउ अल्फ़ा जो है बहुत छोटी वैल्यू है, हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं 1 की टर्म्स में, जहाँ पे निगलेक्ट हो रहा है वहाँ पे कर सकते हैं रिएक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। बिकॉज पार्शियल प्रेशर अगर हमें निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स लिखना है, तो जाएंगे एक्स के मोल्स विच इज़ 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने हैं? 1 प्लस अल्फ़ा इंटू ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर किसका? एक्स का, इंटू टोटल प्रेशर। यही होता है ना मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, हमने रॉल्स लॉ में पढ़ा था। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई कितना हो जाएगा? इसके कितने मोल्स है? अल्फ़ा डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स विच इज़ 1 प्लस अल्फ़ा। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड कितना हो जाएगा? इसके मोल्स अल्फ़ा अपॉन टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फ़ा। और अगर हमने यहाँ पे इस वाली रिएक्शन के लिए निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा? इसके मोल्स कितने? 1 माइनस अल्फ़ा, टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टोटल प्रेशर, सॉरी यहाँ पे टोटल प्रेशर भी लिखना था, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना आ जाएगा? बी के कितने मोल्स हैं? 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने? 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर विच इज़ पी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, हमें किसका रेशियो बताना है? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इन 1 and 2। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम P1 और P2 की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे टोटल प्रेशर जो था हम ले लेते हैं P1 और यहाँ पे टोटल प्रेशर में ले लेते हैं कितना? P2 एंड P2। इन दोनों का रेशियो बताना है P1 एंड P2 का। और KP1 और KP2 का रेशियो दिया है KP1 अपॉन KP2, इसका रेशियो दिया है कितना? 9:1, दैट मीन्स 9/1। तो KP1 कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ y इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ z डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ x डिवाइडेड बाय KP2 के लिए क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ b रेज़ टू पावर 2 स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ a। नाउ व्हाट विल डू? पार्शियल प्रेशर ऑफ y कितना है? 1 प्लस अल्फ़ा, जो है अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम 1 प्लस अल्फ़ा को समवट अराउंड 1 ही मान लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू बिकॉज बहुत छोटी है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू P1 मल्टीप्लाइड बाई PZ कितना है? दिस वॉज PY, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ। दिस इज़ 9/1 इज इक्वल टू PY कितना दिया है? अल्फ़ा इंटू P1 टोटल प्रेशर P, उसके बाद P1 अल्फ़ा अपॉन दिस मच इंटू P2 कितना दिया है? अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू P1, दिस इज P2 अपॉन PX कितना दिया है? 1 माइनस अल्फ़ा इंटू P1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना दिया है? KP2 हो जाएगा कितना? इसके लिए पार्शियल प्रेशर B का पार्शियल प्रेशर कितना है? 2 अल्फ़ा इंटू P2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय PA कितना दिया है? 1 माइनस अल्फ़ा इंटू P2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन को आगे सॉल्व करके। यहाँ पे कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, यस 1 माइनस अल्फ़ा एंड 1 माइनस अल्फ़ा आर गेटिंग कैंसल्ड। और कुछ कैंसिल हो रहा है, लिख के देख लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा का स्क्वायर। P1 इंटू P1 क्या हो जाएगा? P1 का एक P1 से P1 कैंसिल, ओनली P1 विल बी लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज हाउ मच? अल्फ़ा का स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? P2 का स्क्वायर आ गया। और P2 स्क्वायर एक P2 से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी ओनली P2 का स्क्वायर नहीं होगा, ओनली P2। नाउ हमें किसका रेशियो चाहिए? P1 अपॉन P2 का रेशियो चाहिए। अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा स्क्वायर आर गेटिंग कैंसल्ड, सो यहाँ पे आ जाएगा 9/1। दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच? P1 अपॉन 4P2। 4 यहाँ पे क्या है? डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। दैट मीन्स P1 अपॉन P2, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 9 इंटू 4/1। 9 4 इज हाउ मच? 36/1। तो रेशियो क्या बना? 36 रेशियो 1
विच इज़ गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. 20 लीटर कंटेनर यानी वॉल्यूम दिया है टोटल हाउ मच 20 लीटर. एट 400 Kelvin टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिया है 400 Kelvin. कंटेन्स CO2 एट प्रेशर ऑफ 0.4 एटमॉस्फेयर. इसमें CO2 है एंड एन एक्सेस ऑफ SRO. CO2 दिया है और CO2 का प्रेशर दिया है हाउ मच एंड एन एक्सेस ऑफ SRO इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो और ये रिएक्शन दी है ऐसे SrCO3 इज इन इक्विलिब्रियम विद SRO प्लस CO2. ऐसी रिएक्शन दी है. यहाँ पर हमें बताया है 0.4 एटमॉस्फेयर दिया है प्रेशर. 0.4 एटमॉस्फेयर एट दिस कंडीशन द प्रेशर इज 0.4 एटमॉस्फेयर. Now what next? 0.4 atmosphere and an excess of volume of container is now decreased by moving pistol. अब हमने क्या किया, वॉल्यूम को डिक्रीज किया लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू. जब प्रेशर मैक्सिमम होगा उस टाइम पे हमें बताना है मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो रहा है अटेन्स इज मैक्सिमम वॉल्यूम. और ये रिएक्शन गिवन है और केपी की वैल्यू भी गिवन है हाउ मच इस रिएक्शन के लिए 1.6 एटमॉस्फेयर. 1.6 एटमॉस्फेयर गिवन है और क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम 20 लीटर है पहले 400 Kelvin पे. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे बॉयल्स लॉ लगेगा. PV इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट. ये वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ करने वाले बॉयल्स लॉ की. सेकेंडली अगर हम देखें तो ये सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में और ये गैस में. तो हमने हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि केपी में हम सिर्फ गैस वाले को कंसिडर करते हैं. दैट मीन्स केपी की वैल्यू आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ओनली CO2. बाकियों को कंसिडर नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू यूनिटी के बराबर होती है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 केपी की वैल्यू कितनी दी है 1.6 एटमॉस्फेयर. तो यहाँ से हमने पहले प्रेशर निकाल लिया CO2 का और उस केस में इसका वॉल्यूम भी गिवन था कितना 20 लीटर. तो तब इसका वॉल्यूम दिया हुआ था स्टार्टिंग वाले केस में कितना दिया था 20 लीटर और उस केस में प्रेशर कितना बोला था मैक्सिमम 0.4 एटमॉस्फेयर. ठीक है. लेकिन इन्होंने लास्ट में क्या बोला, प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा. तो मैक्सिमम प्रेशर कब होगा 1.6 एटमॉस्फेयर. केपी की वैल्यू इतनी दी है 1.6 एटमॉस्फेयर. तो मैक्सिमम वैल्यू प्रेशर की यही हो सकती है. दिस कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू. इससे पहले वाली जो कंडीशन दी थी वहाँ पे वॉल्यूम दिया था 20 लीटर और प्रेशर दिया था 0.4 एटमॉस्फेयर. एंड बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी. दैट मीन्स P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2. फर्स्ट वाली कंडीशन में P1 कितना दिया था 0.4, वॉल्यूम कितना दिया था 20 इज इक्वल टू P2 कितना है इस केस में 1.6 इंटू वॉल्यूम V. अभी हमने निकालना है V2. 1.6 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड ऑन 1.6. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल. 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 16. 4 4 are 16, 4 5 are 20. So answer will be 5 liter, which is in option D. The following equilibrium Kp and Kc are not equal. We know the relationship between them. Kp is equal to how much Kc into RT raised to power delta n. So जब भी कभी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आएंगे Kp और Kc की वैल्यू बराबर नहीं होंगी. लेकिन when delta n is what, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. जब इसकी वैल्यू 0 आएगी तो RT रेज टू पावर 0 इज़ 1. तो उस केस में Kp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Kc. तो ये कब होता है जब डेल्टा n की वैल्यू 0 के बराबर आती है. तो यहाँ पे हमें बताना है कहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी कहाँ पे डेल्टा n की वैल्यू 0 नहीं है. अगर हम फर्स्ट वाले केस में देखें तो डेल्टा n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल कितने N2 के 1 O2 के 1 1 + 1 इज 2 माइनस रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं 2 2 - 2 इज 0. यहाँ पे 0 आ गया. दैट मीन्स यहाँ पे Kp इज इक्वल टू Kc. फर्स्ट वाले में तो है Kp इज इक्वल टू Kc. सेकेंड वाले केस में अगर हम देखें बी वाले में डेल्टा n रिएक्शन प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 1 and 1 2, रिएक्टेंट के कितने 1 and 1 2 2 - 2 इज 0. तो सेकेंड वाले केस में भी Kp इज इक्वल टू Kc. नेक्स्ट अगर हम थर्ड वाला केस देखें डेल्टा एन आर, डेल्टा एन लिखते हैं उसको सिंपली. यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, हम सिर्फ गैस के कंसिडर करते हैं 2 - 1 मोल आयोडीन का 1 मोल हाइड्रोजन का, दोनों गैस हैं 2 - 2 इज 0. यानी सी वाले केस में भी डेल्टा एन की वैल्यू 0 के बराबर है. यहाँ पे भी Kp इज इक्वल टू Kc होगा. अगर हम डी वाले केस में देखें तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2 माइनस रिएक्शन के कितने हैं 2 मोल्स. कार्बन का कंसिडर नहीं करेंगे, सॉलिड है, सॉलिड के लिए यूनिटी लेते हैं. तो ऑक्सीजन का कंसिडर करेंगे 1 2 - 1 इज 1. दैट मीन्स यहाँ पर इक्वल नहीं आएंगे Kp Kc. Kp की वैल्यू होगी Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा एन विच इज़ 1. दैट मीन्स इस वाले केस में Kp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा Kc इंटू RT. ये वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे बराबर नहीं होंगे. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी.
Question is, if the concentration of OH negative in the reaction is given as FeOH whole thrice, this is in solid, this is giving us Fe3 positive aqueous solution में plus 3 moles of OH negative aqueous solution में. We very well know हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, उनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी मानते हैं 1. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की डिक्रीज़ की है 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स इसको डिक्रीज़ किया है. देन इक्विलिब्रियम ऑफ Fe3 पॉजिटिव विल इंक्रीज बाय, हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन रखना है. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, Kp Kc की वैल्यू अगर हम लें तो कितना हो जाएगा, OH नेगेटिव का होल पावर 3 इंटू Fe3 पॉजिटिव होल पावर 1. अब इसकी वैल्यू 1/4 से कम कर रहे हैं, यानी दिस वैल्यू इज डिक्रीज बाय 1/4. तो ओवरऑल डिक्रीज कितना आएगा, इसका क्यूब कर लो. सो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यानी 1/64 टाइम्स जो है रिएक्शन Kc की वैल्यू कम हो रही है. तो इसको कितने से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा 64 से. तभी ये दोनों कैंसिल होके नेट रिजल्ट Kc इज इक्वल टू 1, कोई नेट रिजल्ट वही आएगा जो पहले था. तो जब इसको डिक्रीज़ किया 1/4 से, यानी इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा 64 टाइम्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा. हम यहाँ से भी निकाल सकते थे 1/4, इसका पावर रख देते 3, इससे इसको डिक्रीज़ किया, यानी इसको 1/64 टाइम्स डिक्रीज़ किया, तो इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा 64 से. तो भी 64 इंटू 1/64 1 होगा, तो नेट इफेक्ट 0 होगा. So this will increase by 64 times, which is in option first. Constant Kp for the following reaction. Reaction is given as magnesium carbonate in solid is in equilibrium with magnesium oxide in solid plus carbon dioxide in gas. Heterogeneous equilibrium में we studied कि pure solid और pure liquids के लिए कंसनट्रेशन इज यूनिटी. उनकी कंसनट्रेशन या उनका पार्शियल प्रेशर हम कंसिडर नहीं करते, हम ज़्यादातर गैसियस या एक्वस सोल्यूशन वाले का कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे Kp की वैल्यू लिखनी है विच विल ओनली बी इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 into 10 raised to the power 12. देन इक्विलिब्रियम सिस्टम विल कंटेन, क्या कंटेन करेगा, ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. वी वेरी वेल नो कि जब Kc की वैल्यू 1000 से ज़्यादा आएगी तो रिएक्शन ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन तक जाएगी और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी. और दूसरा हमने पढ़ा था जब Kc की वैल्यू कम आएगी 1/1000 से तो रिएक्शन रेयरली प्रोसीड करेगी. रिएक्शन स्टार्ट ही हुई थी कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, यानी उस केस में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. यहाँ पे ये 10⁻³ से कई ज़्यादा है, 10⁻12 है. दैट मीन्स रिएक्शन विल कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट. In Haber's process is what? Nitrogen plus hydrogen is in equilibrium with ammonia NH3. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा. Reaction is balanced. Now 30 liters of dihydrogen, 30 liters of dihydrogen and 30 liters of dinitrogen were taken for reaction which yielded only 50% of the product. तो जितना हमें प्रोडक्ट चाहिए था उसका only 50% मिला. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 लीटर नाइट्रोजन को 3 लीटर हाइड्रोजन चाहिए, तो 30 लीटर नाइट्रोजन को 90 लीटर हाइड्रोजन चाहिए होगा, लेकिन हाइड्रोजन कम है. दैट मीन्स हाइड्रोजन इज़ व्हाट, हाइड्रोजन इज़ आवर लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिसाइड करता है. तो 3 लीटर हाइड्रोजन को 1 लीटर नाइट्रोजन चाहिए, तो 30 लीटर को कितना चाहिए होगा, सिर्फ 10 लीटर्स नाइट्रोजन. सो बाकी 20 लीटर जो है अनरिएक्टेड रह जाएगा. दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद 3 लीटर 2 लीटर दे रहा है, तो 30 लीटर कितना देगा, 20 लीटर्स ऑफ अमोनिया. नाउ रिएक्शन में गिवन कंडीशन क्या है कि 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म. एक्सपेक्टेड तो ये था लेकिन सिर्फ उसका 50% बना, तो इसका हाफ कर देंगे. दैट मीन्स 10 लीटर अमोनिया जो है वो बन रहा है. यहाँ पे इसका हाफ करो, 5 लीटर अमोनिया, 5 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है और 15 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है. रिएक्ट कर गया, ये नहीं बचा, ये रिएक्ट करके इसने 10 लीटर अमोनिया दे दिया. अमोनिया इज इन द रिएक्शन, बट हमने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ली थी इसकी, 30 लीटर. तो हाइड्रोजन अब कितना बच जाएगा, 30 - 15, 15 लीटर इज लेफ्ट, और यहाँ पे 30 - 5, दैट मीन्स 25 लीटर ऑफ नाइट्रोजन इज स्टिल लेफ्ट. दिस इज लेफ्ट, दिस इज अनरिएक्टेड, एंड 5 लीटर एंड 15 लीटर ने रिएक्ट कर लिया और 10 लीटर अमोनिया बना दिया. दैट मीन्स रिएक्शन में 25 लीटर नाइट्रोजन होगा, 15 लीटर हाइड्रोजन होगा और 10 लीटर अमोनिया होगा, which is given in option B. B option में दिया 10 लीटर अमोनिया, so option B will be the right answer. Reaction quotient Q for the reaction. This is Haber's process. 3 moles of hydrogen is in equilibrium with 2 moles of ammonia. यहाँ पे equilibrium constant, reaction quotient दिया है how much, NH3 का square upon N2 raised to power 1 into hydrogen raised to power 3. The reaction will proceed from right to left.
राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कब प्रोसीड करेगी? जब QC की वैल्यू ज़्यादा होगी और QC अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा, तभी तो वो बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। व्हेन QC इज लेस देन KC, देन बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। Backward reaction is favored. So QC less than KC, greater than KC, which is given in option C. Of sucrose, hydrolysis of sucrose is given by the formula of reaction. Following reaction, sucrose plus water is giving us glucose plus fructose. If the equilibrium constant Kc is given as 2 into 10 raised to the power 13 and absolute temperature is given as 300 Kelvin, so value of delta Gr, G naught R at the same temperature will be. We very well know कि जनरल रिएक्शन तो ये होती है डेल्टा GR इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग QC, लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है? दिस वैल्यू बिकम ज़ीरो, सो दिस वैल्यू इज ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT LN, और इक्विलिब्रियम पे QC की वैल्यू KC के बराबर हो जाती है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा G नॉट R, ये यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस RT LN KC। सो दिस वैल्यू विल बी माइनस R की वैल्यू किस में लेंगे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और यहाँ पे KC की वैल्यू कितनी दी है? 2 इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना दिया था? 300 केल्विन इंटू KC की वैल्यू कितनी दी है? 2 इंटू 10 रेज टू द नेचुरल लॉग 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 13. दिस विल बी द आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन जूल पर केल्विन पर मोल फर्स्ट 300. First option first. Which one of the following is correct for reversible process in state of equilibrium? When reversible process is there, that means equilibrium में है, in state of equilibrium. जनरल रिएक्शन तो होती है ये डेल्टा GR इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT LN K. अगर इसको लॉग की टर्म्स में लिखना है तो दिस विल बी डेल्टा G नॉट प्लस नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है 2.303 RT log of K. Now what will happen at equilibrium? This value will be equal to 0. This is delta G naught plus 2.303 RT log K. Now ये वैल्यू यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? माइनस. सो डेल्टा G naught is equal to minus 2.303 RT log of K. So this is given in option first. Match list 1 with list 2 and select the correct option. फर्स्ट ऑप्शन इज़ KP इज़ ग्रेटर देन Q. जब Q की वैल्यू कम होगी तो Q अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स इन दिस केस फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फेवर्ड, और वी कैन से द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस. फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस होगी फर्स्ट वाला. नेक्स्ट देख लेते हैं बी वाला. बी वाले केस में दिया है डेल्टा G नॉट की वैल्यू इज़ लेसर देन RT LN Q. सो डेल्टा G की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा G नॉट प्लस RT LN Q. सो ये वैल्यू ग्रेटर है, यानी प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स डेल्टा G की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव वाला वी वेरी वेल नो कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है. सो दिस रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. नेक्स्ट देख लेते हैं सी की वैल्यू दी है KP इज इक्वल टू Q. KP Q के बराबर है, तो इस केस में वी वेरी वेल नो क्या होगा? इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट देख लेते हैं D. T is greater than delta H upon S. That means T delta S की वैल्यू ग्रेटर है डेल्टा H से. गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन इसको माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये वैल्यू कम है, बट स्टिल अगर ये पॉजिटिव होगा तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है. माइनस वाली वैल्यू और ज़्यादा होगी और डेल्टा G और ज़्यादा नेगेटिव आएगा. दैट मीन्स दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा H है ये नेगेटिव ना हो, ये कैसा हो? पॉजिटिव हो. सो डेल्टा H मस्ट बी पॉजिटिव. दैट मीन्स डेल्टा H कब होता है पॉजिटिव? इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस. सो अब मैच कर लेते हैं. A फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस के साथ मैच होगा, यानी A 4 के साथ मैच होगा. एक बार लिख लेते हैं, देख लेते हैं हो रहा है सॉल्व या नहीं. B देख लेते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस. B इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, सो B वाला मैच होगा किसके साथ? फर्स्ट के साथ. नेक्स्ट दिया है C इज़ इन इक्विलिब्रियम. C मैच हो जाएगा 2 के साथ. नेक्स्ट दिया है D इज़ स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक, यानी D हो जाएगा 3 के साथ मैच. सो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में दिया है. A4B1 ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर.